ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو وہ سفید سوٹ پر سفید گاؤن اور سفید ہی اسکارف ملبوس کیے ہوئے تھی۔ سفید رنگت پر یہ گوری گوری لڑکی پہلی ہی نظر میں مجھے بہت اچھی لگی۔ میری ایک کولیگ نے اس کا تعارف کرایا کہ اس کا نام پروین ہے اور یہ شاعرہ بھی ہے۔ میں نے پروین کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا۔ واقعی وہ بہت معصوم تھی۔ میرے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے گھبرا گئی۔ 2-4 لمحے کسی اور مصروفیت کا بہانہ کر کے چل پڑی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتیں۔ اس کی پرکشش شخصیت مجھے اپنی جانب کھینچتی۔ یہاں ملازمت کرتے عرصہ ہو گیا تھا، مگر میں نے اس جیسی انفرادیت کسی اور میں نہیں دیکھی تھی۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ پروین کو سفید رنگ غیر معمولی حد تک پسند تھا۔ یہ جب بھی نیا سوٹ سلواتی وہ سفید ہی ہوتا، خواہ وہ ریشمی ہو یا پھر سوتی ہو، یہاں تک کہ جوتا بھی سفید پہنتی۔ کہیں یہ انتہا پسند تو نہیں؟ یہ جانچنے کے لیے میں نے اسے بھتیجے کی سالگرہ اور کچھ دنوں کے بعد اسے اپنی بہن کی شادی پر بلایا۔ وہ تب بھی سفید لباس میں آئی تھی۔ مجھے پتا چل گیا کہ پارٹی ہو یا پکنک، اسے اس کے محبوب رنگ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر یہ کوئی دوسرا رنگ منتخب کیوں نہیں کرتی؟ کیا اسے رنگوں سے چڑ ہے یا نفرت ہے؟ مگر نہیں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی کہ کسی چیز سے نفرت کرے یا پھر اسے اپنی چڑ بنا لے۔ اس نے فطرت کے باقی سارے رنگوں کو کیوں نظر انداز کیا تھا؟ حالانکہ اس عمر کی لڑکیاں کوسے قزاق کے رنگوں کی دیوانی ہوتی ہیں، وہ نت نئے رنگ اپناتی ہیں۔ سفید تو بوڑھوں کا رنگ کہلاتا ہے، یا پھر اس کا جس سے قضا سہاگ چھین لے جاتی ہے۔ کیا اس کا دل مر گیا ہے یا جی کسی شوخ لباس کو نہیں چاہتا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے ہمہ وقت الجھن میں مبتلا رکھا۔ کئی بار خیال آیا کہ شاید یہ دوسری لڑکیوں سے خود کو منفرد دکھانے کو ایسا کرتی ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ پروین نام کی طرح بے حد خوبصورت تھی، اس پر کوئی بھی رنگ جچتا تھا۔ بہرحال اسی راز کو معلوم کرنے کو میں نے اس سے پختہ دوستی کا ارادہ کر لیا۔ حالانکہ پروین سے دوستی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ بہت ہی الگ تھلگ اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ کئی برس سے وطن میں دور بیرون ملک گزار کر آئی تھی۔ بہانے بہانے میں اس کی سیٹ کی طرف جانے لگی۔ اگرچہ میں سینئر تھی، اسے دفتری امور کی وجہ سے میرے پاس آنا پڑتا تھا، مگر میں اپنے منصب کا لحاظ کیے بنا خود ہی چل کر اس کے پاس چلی جاتی، اس کو وہ نکات سمجھاتی جو اسے ہی مجھ سے آ کر سمجھنے تھے۔ اس اخلاق اور مہربانیوں کے باعث بالآخر وہ میری گرویدہ ہو گئی، اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ تبھی ایک دن جب کہ وہ میرے گھر آئی، پروین نے مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم یہ عشق تھا یا وحشت تھی، اس جہاں چار سو میں میری ہی خواہشیں کیوں بے امان ہو گئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کی لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ان کی محبت نہیں مل پاتی۔ ماضی کا ذکر کرتے کرتے وہ ماضی کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی آواز اب مجھے دور سے آتی تھی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم، جیسے کسی خواب میں بول رہی ہو۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس شام جب شاہ رخ نے مجھے ریسٹورنٹ پر بلایا تو بہار کی رت خنکی کی نمکین چادر اوڑھے ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سورج نارگی رنگ میں ڈوبا آہستہ آہستہ سمندر میں گرتا جا رہا تھا، جبکہ شاہ رخ نے اپنی سوچ کا پردہ توڑتے ہوئے کہا، پروین، آج تم ٹھیک ٹائم پر آ گئی ہو، آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ میں نے کہا، تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ یقیناً اچھی ہی لگ رہی ہوں گی، تو پھر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے؟ تبھی شاہ رخ نے عجیب لہجے میں کہا، تم جو بھی سمجھو پروین، مگر تم واقعی میرے لیے ایسی ہو جیسے کوئی انچھوئی گڑیا ہوتی ہے۔ حالانکہ کتنی لڑکیاں میری دوست بنی اور پھر جدا ہو گئی، مگر تم سے جدا ہونے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ جانے تم کس دنیا کی مخلوق ہو۔ شاہ رخ،
तुम जो भी समझ लो, मगर मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि कुछ बदली बदली सी लग रही हो। शाहरुख ने मेरी बात काट कर कहा। क्या आईना देखा है आज? उसने बात बदलना चाही। मैं भी डटी रही। आज तहैया कर लिया था कि साफ साफ बात करके रहूंगी। आईना तो मैं रोज ही देखती हूँ, मगर आईने ने आज पहली मर्तबा मुझसे बात की है। क्या कहा उसने तुमसे? शाहरुख ने पूछा। एक बड़ी हकीकत की निशानदेही की है कि मैं जिंदगी के 7 साल तुम्हारी खातिर जाया कर चुकी हूँ और अभी तक तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। फिर क्या सोचा तुमने? शाहरुख ने सवाल किया। यही कि अब मैं ज्यादा अरसा खुद को धोखा नहीं दूंगी। क्या तुम्हें याद है, वफा के इस सफर में हम कितनी मंजिलें इकट्ठे तय कर चुके हैं और मैं साबित कदम रही हूँ। हाँ, तकरीबन 7 साल से हम अच्छे दोस्त हैं। शाहरुख ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं शाहरुख? मैं दोस्ती के इस रिश्ते को अब तब्दील करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या दुश्मनी में? वो हंसा। नहीं, अज़दवाजी बंधन में शाहरुख। मैं कभी तुम्हारी तरह नहीं सोचती। तुम भी मेरे बारे में संजीदा हो जाओ। तुम सिर्फ मुझे दोस्त समझते हो, मगर मैं तुम्हें हमसफर बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे मामले में इंतहाई संजीदा हूँ परवीन, शाहरुख ने सरसरी अंदाज में कहा था। यकीन करो परवीन, मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस निकाह के बंधन में मैं बांधकर तुम्हें बेमोल नहीं करना चाहता। ऐसी बातें छोड़ दो शाहरुख, मैं निकाह के बंधन के जरिए ही तुम्हारी रफाकत चाहती हूँ। अच्छा तो यूं कहो ना, अपनी हैसियत तब्दील करना चाहती हो, हालांकि मोहब्बत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। शाहरुख ने उल्टी बात कह दी। बात एक ही है शाहरुख, जिस अंदाज से कहो, मगर हम मगरिब में रहकर भी अपनी मशरिकी रवायात को नहीं भूल सकते। ये मोहब्बत का फरेब, ये दोस्ती का ढोंग किसी रोज तुम्हें मुझसे जुदा कर देगा। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। हम करीब हैं, दिल से करीब रहना चाहती हूँ तुम्हारे। इसी तरह हमेशा उम्र भर मैं तुम्हारी दायमी कुर्बत चाहती हूँ। हम साथी हैं, उम्र भर के साथी रहें तो अच्छा होगा, मैंने शाहरुख से कहा, मगर उसके अंदाज में कुछ संजीदगी नहीं थी। तभी शाहरुख ने कहा कि वो निकाह से ज्यादा दोस्ती और मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बे पर एतबार रखता है। बीवी के रूप में अगर वो मुझे देखेगा तो उसकी सारी कशिश खत्म हो जाएगी। मगर मुझे ये शायराना बातें तपिश की तरह जला रही थीं, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ उससे निकाह करना चाहती थी। लेकिन शाहरुख था कि मान के नहीं दे रहा था। कहने लगा, मैं तो तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि लड़कियां बीवी बनकर अपनी कशिश खो देती हैं। मैं एक अदद बीवी को पिछले 7 साल से कबल 10 साल बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या तुम शादीशुदा थे? बीवी की मौजूदगी पर तुमने मेरे साथ ये सब किया? शाहरुख ने अपने तजर्बे बयान किए तो मैं उस पर फट पड़ी कि अगर वो पहले से शादीशुदा था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी उसने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है। वो तो पिछले 8 सालों से पाकिस्तान में है, जबकि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वो मेरी बीवी कम और मजबूरी सादा है। मैं बाकायदगी से उसे खर्चा तो भिजवाता हूँ, मगर मेरी पसंद, मेरी दोस्ती, मेरी मोहब्बत तुम हो। यूं कह लो कि तुम मेरी महबूबा हो, क्योंकि दोस्त तो और भी हैं, मगर उनमें से कोई महबूबा नहीं लगती। बेवकूफ लड़की, शोकेस में रखी गुड़िया उस वक्त तक खूबसूरत लगती है जब तक हम उसे खरीद न लें। शाहरुख का फलसफा अजीब था। मैंने कहा, शाहरुख, औरत एक बेजान गुड़िया नहीं है कि जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा फेंक दिया। मैं तो एक जीती जागती मोहब्बत बनकर तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी। मगर शाहरुख की बातों पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो कहने लगा, जब तुम मेरी मलकियत बन जाओगी तो एक बेजान गुड़िया की हैसियत से हो जाओगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें पाबंद करके बेवकूफ़ नहीं करूँगा। क्या फ़र्क पड़ता है, निकाह मुझसे नहीं किसी और से सही। वो निकाह के मुकद्दस बंधन को इकरारी लफ्ज़ कह रहा था, इसलिए कह रहा था कि बेशक कोई और शख्स मेरी कीमत लगा दे। एक अदद बीवी के साथ तल्ख तजर्बे की मंजिलात तय कर चुका था, मगर मैं उसके जैसी नहीं थी। मैं तो अपने होने वाले शौहर के साथ जिंदगी का एतमाद सफ़र के साथ तय करना चाहती थी। शादी न करने की वजह से तुम मुझसे रूठ जाओगी? कोई बात नहीं, फिर भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे।
शाह रुख ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, नहीं शाहरुख, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो तुम्हारी दोस्ती से दस्तबरदार हो जाऊंगी, इसलिए कि शायद मेरा शौहर तुम्हारी बीवी की तरह मासूम, बेज़मीर और मजबूर नहीं होगा। मैं भी तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। यह हमारी मुलाकात का आखिरी दिन था। मैं वहां से उठकर उसे बिना खुदा हाफिज कहे रेस्टोरेंट से निकल आई थी, ये सोच कर के उसकी यादों से बिलाखिर पीछा छुड़ा लूंगी, एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दूंगी, क्योंकि अब मैंने घर बसाने का तहैया कर लिया था। आईना झूठ नहीं बोलता, मेरी उम्र निकली जा रही थी। एक सवाल अलबत्ता मुझे परेशान कर रहा था कि क्या मैंने वाकई शाहरुख से मोहब्बत की थी, बेगर्ज, या कि इस मोहब्बत के पर्दे में मेरी खुदगर्जी भी शामिल थी। उसके साथ शादी की ये आरज़ू खुदगर्जी थी या कि फितरी ख्वाहिश, मैं पहचान नहीं सकी। अगले रोज इतवार था, छुट्टी का दिन था, जो शाहरुख और मैं हमेशा साहिल समंदर पर और कभी किसी खुले तफरीही मकाम पर बनाते थे। मैं कभी घर से खाना बनाकर ले जाती थी और वो कुछ और खाने की अशिया ले आता था। आज उसकी कमी महसूस हो रही थी, दिल में दर्द हो रहा था। कान दर पर लगे हुए थे कि अभी वो दस्तक देगा और मुझे लेने आ जाएगा, मगर मैं तो उस शाम सारे बंधन तोड़ आई थी। दोस्ती के ताल्लुक को खैराबाद कह दिया था। अचानक दर पर दस्तक हुई। फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सफ़ेद गुलाब लिए सामने खड़ा था। उस दिन इत्तेफाक से मैंने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। तुम इस लिबास में कितनी अच्छी लगती हो, हालांकि एक बेरंग रंग है, मगर तुम पर कितना सजता है। मेरा जी चाहता है तुम हमेशा यही रंग पहना करो। सुर्ख रंग तुम पर नहीं जचता, इसीलिए तुम सफ़ेद गुलाब लाए हो। चाहते हो कि मैं सुहागन न बनूं? यहाँ दुल्हनों का लिबास सफ़ेद होता है। तुम सुर्ख मत पहनना, अपनी शादी के दिन भी सफ़ेद लिबास बनवाना। तभी मैं चिढ़कर बोली, अब मेरी शादी से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा जुमला मेरे लबों पर अधूरा रह गया। तुम्हें खुदा हाफिज कहने, क्योंकि तुमने जाते हुए मुझे खुदा हाफिज नहीं कहा था। मैं इसी हफ्ते पाकिस्तान जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि खुदा हाफिज कहता जाऊं। मैंने उसे खुदा हाफिज कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे अंदर आने को भी नहीं कहा। वो सफ़ेद गुलाब हाथ में लिए चला गया। मैंने बालकनी से झांका, वो बहुत टूटा हुआ लग रहा था। न जाने क्या कहने आया था। मैंने उसकी बात भी पूरी नहीं सुनी थी। वो सारी रात रोते हुए गुजार दी। 2 दिन के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, तुम फौरन पाकिस्तान पहुंचो, मैं वहां तुमसे शादी करूंगा। घर वालों को शामिल करके हम शादी करेंगे। अब तो खुश हो ना? उसे एक कॉल से मैं खिल उठी थी। भूल गई थी कि उसकी बीवी भी है, एक बच्चा भी है। इनके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। जल्दी जल्दी से तैयारी बांधी, मुलाजिमत से इस्तीफा दिया और पाकिस्तान चली आई। क्या फिर तुमने उससे शादी की? मैंने बेताबी से उससे रुक रुक कर पूछा। नहीं, उसने ठंडी आह भरकर कहा। ये खुशी मेरे नसीब में नहीं थी। जिस रोज वो शादी का संदेशा लेकर हमारे घर आ रहा था, रास्ते में एक मनहूस लम्हे ट्रैफिक के हादसे ने उसे निगल लिया। वो जाम बहक हो गया। तभी मैंने सफ़ेद रंग के लिबास को अपना मुकद्दर बना लिया है, क्योंकि उस रोज भी मैं सफ़ेद लिबास पहने उसकी आमद की मुंतज़िर थी। ये कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और मैं सोचती रह गई कि शायद मुकद्दर इसी को कहते हैं कि कुछ लोग तो ना चाहते हुए भी मिल जाते हैं और कुछ बहुत चाहने के बावजूद भी मिल नहीं पाते। परवीन हमारे साथ ऑफिस में आज भी काम करती है। उसने शादी नहीं की, वो आज भी परवीन है। शादी को वो एक फितरी अमर जानती है, मगर फिर भी शादी नहीं कर सकी, न जाने क्यों। अगर आपको आज का ये वाकया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।